بات کرتے ہیں ہم اس جگہ کی جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں مقبوضہ فلسطین، جہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے مسلمانوں پر۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو مارا پیٹا بے دردی سے جا رہا ہے لیکن اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی تو غلط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دشمن آپ پر اپنا خوف طاری نہیں کر سکتا تو اس کی بھاری عسکری طاقت اور جدید جنگی ہتھیار بھی اس کی شکست کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ فلسطین پر قابض اسرائیلی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے باعث ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، ہر کوئی اس کا معترف نظر آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام صلاحیت حریت پسند فلسطینیوں پر اسرائیل کا خوف طاری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں۔ مریم عفیفی ہو، احد تمیمی ہو یا بشرا الطویل، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی بے خوفی سے ظالم ریاست اسرائیل کے چہرے پر زوردار تماچا مارا ہے اور یہ پیغام پوری دنیا کو دے دیا ہے کہ یہ جنگیں اسلحے سے نہیں بلکہ جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ جذبہ ہو تب آپ ہر چیز بہتر طریقے سے جیت سکتے ہیں۔ کل جب مریم عفیفی کو ظالم اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا تو ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور یہ ایک احتجاج کا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ہمیں اگر گرفتار کیا جائے گا تو ہم مسکرائیں گے، شہید کیا جائے گا تو مسکرائیں گے۔ تو یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں مریم عفیفی ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں، ایک اسرائیلی اہلکار سے سوال کر رہی ہیں۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں نے کیا ہے، کیا جرم ہے میرا؟ صرف یہ کہ ایک لڑکی کا دفاع کیا جس پر تشدد کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس لیے گرفتار کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا دفاع کیا جنہیں گھروں سے باہر نکالا گیا ہے۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یہ سوال کر رہی ہیں مریم اس اہلکار سے، اس اسرائیلی اہلکار سے جس نے جا کر وہاں پر بمباری کی، وہاں پر تشدد کیا، وہاں پر گرینیڈز پھینکے، گولیاں برسائیں، دھماکے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک انسان ہو اور ہو سکتا ہے تمہاری فیملی بھی ہو، تمہارے بچے بھی ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ظالموں کا دفاع کرتے ہوئے بوڑھے ہوں؟ تم یہ بننا چاہتے تھے جب تم جوان تھے؟ یہ مریم اس اہلکار سے سوال کر رہی ہے۔ تو یہ گفتگو، یہ مریم کی گفتگو، یہ اس جرأت مند خاتون کی گفتگو آپ نے سنی جو یہ سوال کر رہی تھی اس اسرائیلی اہلکار سے۔ اور یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں کہ جب بمباری ہو رہی ہو، گولیاں برسائی جا رہی ہوں، وہاں پر دھماکے ہو رہے ہوں، یہ سینہ تان کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے بغیر کسی ہتھیار کے۔ ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز تھے لیکن ان کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف اپنی جرأت سے، اپنے حوصلے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں 3 وقتوں کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان فلسطینیوں کے چہروں پر کسی قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہے۔ صہیونی حراست میں یہ مسکراتے چہرے اعلان کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے۔ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران قبلہ اول میں جس بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ نہتے عبادت گزاروں پر ساؤنڈ بموں کا ساتھ ساتھ براہ راست فائرنگ اور بے تحاشا آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ فلسطینیوں کو قبلہ اول کے تحفظ سے پیچھے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مختلف ویڈیوز میں کہ جو لوگ ہیں وہ مزید مارچ کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ دھماکوں کے بعد وہاں فلسطینیوں کیا جذبات ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بلند ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے جو گولیاں چلائی گئی، جو شیلنگ کی گئی، جس طرح سے انہیں زخمی کیا گیا، فلسطینیوں نے کیا کیا؟ اس کے شل سے مسجد اقصیٰ یعنی وہ قبلہ اول جس کا محاصرہ کرنے چلے تھے اسرائیلی، اس کا نقشہ بنا دیا۔ یہ ہم اس وقت آپ کو تصویر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ گولیوں کے خول ہیں جو اکٹھے کیے مسجد اقصیٰ، جو کہ مسلمانوں کو بڑی عزیز ہے، قبلہ اول ہے ہمارا، جس کی محبت رہتی دنیا تک، مرتے دم تک ہمارے دلوں میں قائم رہے گی۔ اس مسجد اقصیٰ کا نقشہ بنایا گیا اور بتایا گیا، پیغام دیا گیا کہ جتنا مرضی ہمیں ستا لو، تنگ کر لو، ہماری محبت اس مسجد سے، ہمارے قبلہ اول سے کم نہیں ہو پائے گی۔ گزشتہ رات غزہ میں بھی بمباری کی گئی، 9 بچوں سمیت 22 نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ کیا فائدہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا جن کے چہرے پر مسکراہٹ ہے پھر بھی آپ شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں؟ منگل کی صبح بھی اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بمباری کی ہے۔ جنوبی غزہ اور خان یونس کو نشانہ بنایا گیا، مغربی اور شمالی علاقوں پر بھی بم گرائے گئے۔ فلسطین کی درخواست پر آخر کار عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس آج قاہرہ میں ہوگا۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیلی کونسل خانے کے سامنے سینکڑوں افراد نے
ने मुजाहरा किया है। लंदन में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के घर के सामने भी मुजाहरा हुआ है। मैनचेस्टर, बर्लिन और शिकागो में भी मस्जिद अक्सा में सहूनी फोर्सेस के हमलों के खिलाफ लोगों ने मुजाहरा किया है। बार बार आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि इनको महफूज किया जाए, इनको ज़िंदगी की वो रौनकें, वो तमाम तर खुशियाँ वापस लौटाई जाएँ जिसके ये लोग हकदार हैं। आप एक ऐसे मुसलमानों से जंग लड़ रहे हैं, उन पे गोलियां बरसा रहे हैं जो अल्लाह के घर में नमाज अदा कर रहे थे। आपने उन लोगों को शहीद किया और फिर उन्होंने एहतजाज का तरीका क्या अपनाया, ज़रा सुनिए कि चेहरे पर मुस्कुराहट, और इस मुस्कुराहट को हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हम तब भी मुस्कुरा रहे होंगे। हमें शहीद किया जाएगा, हम तब भी मुस्कुरा रहे होंगे। हम उस कौम को पैगाम देंगे जो कि जंगी सलाहियतों में तो शायद बहुत आगे है, लेकिन इंसानियत उनमें सिफर के मुतरादिफ है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। उस कौम को हम पैगाम दे रहे हैं, उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं जो कि हम पे बमबारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमें गिरफ्तार किया जाता है तो किस तरह से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट बताती है कि इजराइलियों को कितनी शिकस्त हुई है। बिल्कुल, कितनी शिकस्त हुई है ये उनकी मुस्कुराहट में वाज़ेह है, और हम देख रहे हैं कि वहां पर एहतजाज बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि कुफ्फार हमला आवर होकर इस तरीके से तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाएंगे जैसा कि दस्तरखान पर खाने के लिए कुछ लोग जमा होते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ खाओ, तुम भी आ जाओ खा लो। बिल्कुल यही मंजर होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आखिरी दौर में हमारी तादाद कम होगी? फरमाया, नहीं, तादाद कम नहीं होगी। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हर एक को दुनिया की माता परस्ती की मोहब्बत होगी, मौत से हर कोई बचना चाहेगा। गोया आफियत को उज़र बना लिया जाएगा। हर कोई अपनी दुनियादारी, अपने इशरत कदे, अपनी ऐश और अपनी शौकत को बरकरार रखना चाहता है। लेकिन ये याद रखने की बात है कि कोई भी शख्स, कोई भी हुकूमत पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमतों में से कोई भी मुस्लिम हुक्मरान ज्यादा अरसे तक इग्नोर नहीं कर सकता। आज अगर मस्जिद अक्सा के अंदर हमारी माओ बहनों को ऐन अफ्तारी और तरावी के वक्त में धकेला जा रहा, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, उन पर फायरिंग हो रही है, इबादत गुजारों पर फायरिंग हो रही है, और मशरकी यरूशलेम में शेख जर्राह के इलाके में गलियों में पिछले 10 रोज से फलस्तीनियों और यहूदी आबादकारों के दरमियान मुसलसल कशीदगी जारी है। और ऐन अफ्तार के वक्त के अंदर, अफ्तार के वक्त में शेख जर्राह के इलाके, जो बिल्कुल मस्जिद अक्सा से मिला हुआ इलाका है, इस इलाके के अंदर घरों के अंदर घुस करके उन्होंने खवातीन को खींचा है और उनके आंचलों को, उनके दुपट्टों को खींचा। मस्जिद अक्सा में तरावी के वक्त में जिस तरह इन खवातीन और बच्चों की आहें आई हैं, जिस तरह इनकी चीखने की आवाजें के दिलसोज मनाज़िर आए, जिस तरह ये बिलक रहे थे, ये चीखे और ये आहें, ये सिसकियां ज्यादा अरसे तक इग्नोर नहीं की जा सकती। बिल्कुल मुफ्ती साहब, और ये इग्नोर करने के लायक है ही नहीं, इनके लिए तो बात करना बेहद जरूरी है। ये जो हौसला हम वहाँ पर मौजूद मुसलमानों का देख रहे हैं, जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, वो बच्चे हों, बड़े हों, खवातीन हों, वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ऐन तरावी के वक्त जब वो बमबारी करते हैं, शेलिंग करते हैं, उसके बावजूद वो तरावियाँ जारी रहती हैं, वो नमाज जारी रहती है। ये हौसला, ये हिम्मत, ये मोहब्बत कैसे आती है? ये याद रखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अल्लाह से मोहब्बत और जो तवक्कुल का रिश्ता होता है, ये इन फलस्तीनियों में कूट करके भरा हुआ है। आप हैरान होंगी कि 3 दिन पहले अफ्तार के वक्त में मस्जिद अक्सा के नमाजियों के खून से जो होली खेली गई है और जख्मी निहत्ते नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग, सैकड़ों जख्मी हो गए, मस्जिद अक्सा लहूलहान। उस हालत में भी इमाम तरावी पढ़ा रहा और समी अल्लाहु लिमन हमीदा और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही, और पीछे जख्मी और औरतों की आहों के दिलदोज मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये ऐसी खुली दहशतगर्दी हुकूमत इस्राइल और रियासती सतह पर हुई है, और सबसे ज्यादा अफसोस का मकाम ये है कि जिस तरह मुस्लिम हुक्मरान उस पर खामोश है। तो याद रखना चाहिए, आज मौलाना तकी उस्मानी साहब ने जबरदस्त ट्वीट किया है, वक्त एक सा नहीं रहता, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, क़िबले अव्वल से जो बेवफाई करेगा, ये बेवफाई कोई सस्ता सौदा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हम ब्लैक लाइव्स मैटर सुनते हैं, इसके साथ साथ हम कई लाइव्स मैटर सुनते हैं। हम यहाँ पर शेख जर्राह लाइफ मैटर्स क्यों नहीं सुनते, फलस्तीन लाइफ मैटर क्यों नहीं सुनते? बेशक यही मस्जिद अक्सा तो चीख रही है, वहाँ के नमाजी चीख रहे हैं, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं,
जिसको इख्तियार है, मुकन्निना को, इक़्तिदार के लोगों को, अरबाब हुकूमतों को, खास तौर पर अरब हुकूमतों को याद रखना चाहिए, लफ्जी मजम्मत काफी नहीं। OIC कहाँ गायब है, अरब लीग कहाँ गायब है, तुर्की, सऊदिया, दुबई, अरब रियासतें, अरब ममालिक, पाकिस्तान, तमाम की तमाम मुस्लिम हुकूमतों को सामने आना चाहिए। जकार्ता से लेकर अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक तक के तमाम कैपिटल और हुकूमतों और दारुल हुकूमतों को आवाज उठानी चाहिए। ये रियासती गुंडागर्दी है और ये इबादत गुजारों पर हमला है, निहत्ते नमाजियों पर हमला है और अफ्तार के वक्त रोजादारों को जख्मी किया जा रहा है। दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा पर कल रात को भी इसराइली बमबारी हुई है। इससे ज्यादा वहशत और बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं। ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार कहाँ है? ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार कहाँ है? इंसानी हुकूक और औरतों के हुकूक की आवाजें बुलंद करने वाली NGOs कहाँ है? बिल्कुल, और मुफ्ती साहब इन NGOs को तो सीखना चाहिए मुसलमानों से। सलाहुद्दीन अयूबी की ये वो जमीन जिसको उस वक्त के मुसलमानों ने बड़े फख्र से जब हासिल किया तो उस वक्त के ईसाइयों को ये पैगाम दिया कि ना उन पर तशद्दुद होगा, ना उन पर जुल्म होगा, ना उनको मारा जाएगा, वो अमन के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। और आज ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? और फिर वो मुसलमान जिन पे शेलिंग होती है, जिन पे रबड़ की गोलियां बरसाई जाती हैं, वो मुस्कुरा कर जवाब देते हैं उस ताकत को जो कि जंगी हथियारों में सबसे आगे हमें नजर आती है, लेकिन इंसानियत में वो सिफर है। ये अल्लाह का कुर्ब, ये ईमान की मजबूती। मुफ्ती साहब जरा बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा, ये कैसे हासिल हो सकती है? जब इंसान बेपनाह हो जाता है और दुनिया से बेगर्ज हो जाता है और अपने अल्लाह की जात पर भरोसा और एतमाद करने लग जाता है और उसका तकदीर पर पक्का यकीन हो जाता है, फिर खास तौर पर अकीदत का, ईमान का, एक वालेहाना प्यार का जज्बा जब आ जाता है तो फिर मस्जिद अक्सा के नमाजियों की रौनकें और ये मनाजिर सामने आते हैं। आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों ने पत्थर रखे हुए हैं क्योंकि गोलियों के जवाब के लिए उनके पास असला नहीं है, वेपन नहीं है। वो गुलेलों से लड़ते रहे, वो टैंकों का मुकाबला गुलेलों से करते रहे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद है। वो मुस्करा रहे हैं और फिर पूरी रात अपने नमाजी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुराबितीन के नाम से पहरेदारों की कमेटियां कायम की हुई है और वो पूरी रात पहरा देते हैं। जोहर की नमाज के बाद, फजर के बाद सोते हैं, अपनी माओं का और अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सिर्फ 2 रोज में, पिछले 2 रोज में बैतुल मक़दस के अंदर जारी इन झड़पों में 250 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। देखें, वो आज इस गए गुजरे दौर में भी मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल से अकीदत और मोहब्बत और ईमान का हक अदा कर रहे हैं। सवाल जरूर पूछा जाएगा पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा से कि आज मुस्लिम उम्मा कहाँ गायब है? हमारे पास पेट्रोल की ताकत, वेपन की ताकत, अफवाज की ताकत, रियासती अरबी ताकतें, मुमालिक की ताकतें, क्यों नहीं फलस्तीन के हक के अंदर ये सारी ताकतें इस्तेमाल होती है? क्या इसराइली यहूदी आबादगारों और इसराइली हुकूमत का मुकाबला जकार्ता से लेकर अफ्रीका तक, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर अरब और तुर्की तक की तमाम मुस्लिम रियासतें नहीं कर सकती हैं? बात यह है कि आज हमारे अंदर उसी गैरत की जरूरत है, सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली हमीयत की जरूरत है। दिल खून के आंसू होता है, क़यादतें कुछ और अंदाज में सोचती हैं, मुस्लिम अवाम कुछ और अंदाज में सोचते हैं। पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कनें फलस्तीनियों के साथ हैं और फलस्तीनी अवाम के बारे में बता दो, वो अपनी गजा की गलियों में अफवाज पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा से वो नजरें मिला करके खड़े, हमें कौन मदद फराहम करेगा, हमें कौन मदद फराहम करेगा? मुस्लिम उम्मा को बहरहाल अपना किरदार अदा करना चाहिए। अरब ममालिक, OIC और अरब लीग को सामने आना चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ये ऐसा मामला है जिस पर जितनी बात उतनी कम है।